Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and enjoying good health. Welcome to class 4, and it's time to learn maths. Yesterday we have started our unit 1, numbers and arithmetic operations, and we have done 3 questions on book. Today we will do next questions. Okay, prepare your sheets. Write down date and day, unit number, exercise number and page number. Okay, page number 6. Question 4 is write the given numbers in words. You can see here are the number 3 0 0 0 0 0 0. And how can we read it? How can we know what is the number? For reading this and writing this in words, we can make a place value chart. You can see here the purple box. It is a place value chart, right? And how can we make it? We start from unit side, unit और ones. ठीक है, आप इसे unit भी कह सकते हैं और ones भी. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million. Yesterday we learned about international number system. And international number system, we can give space after 3 digits. You can also see here the space is given after 3 digits. And international number system, the word million is used instead of lakh. Okay, now we can place the values under the place value chart. You can see here there are 0 0 0 0 0 0 and 3. We can place all the values in the place value chart. Now you can see the 3 is written under the millions column. Okay, और देखिए बाकी वैल्यूज हमारे पास कुछ भी नहीं है. All the values are 0. So 3 is written under the column of million. So we can write it like this: 3 million. Right? Next part C is 217 million. And how could we know that it is million? We can again make a place value chart and write all the values in the place value chart like this. And remember it, always make a place value chart from the right side. Okay, 0 under the unit. 0 is also under tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. We can place all the values in this chart. Okay, now you can see this 3 values is unit place. This is called thousands place and this is called millions place. And whenever you want to read, we can always read all these values like 217. And 217 किस कॉलम के नीचे लिखा हुआ है? Right, in the millions column. So we can read it like this: 217 million. Right? Now we can also write in words 217 million. Remaining values देखने हमारे पास यहाँ पर भी 0 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ. So its answer is 217 million. क्लास जो remaining parts आपके हैं B and D, वो दोनों parts आप लोगों ने खुद solve करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पेज नंबर 7 पर मेंशन है राइट इन फिगर्स विथ करेक्ट स्पेसिंग्स. ठीक है, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो फिगर में था और उसको हमने वर्ड्स में लिखा. अब हमारे पास वर्ड्स में लिखा हुआ है और उसको हमने फिगर में लिखना है. याद रखें, जब भी आपने क्वेश्चन वर्ड्स में लिखना हो या फिगर में लिखना हो तो आपने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है. ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती है और हमारे लिए फिगर में और वर्ड्स दोनों में लिखना बहुत इजी हो जाता है. अगेन हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से वंस की साइड से शुरू करेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. ठीक है, अब जौन सी डिजिट्स की वैल्यू हमें हमारे पास मौजूद होंगी हम उसमें प्लेस कर देंगे. लाइक 9 मिलियन. इट्स मीन 9 किसके नीचे आएगा? राइट, मिलियन के कॉलम में आएगा. हमने लिख दिया 9 मिलियन. देखें अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम बाकी सारी वैल्यूज़ के नीचे क्या लगा देंगे? 0 प्लेस कर देंगे. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस: 9
काउंट वी हैव 6 zeros. नाउ वी कैन प्लेस 6 0. और कैसे लिखेंगे 6 0? याद रखिएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 वैल्यूज़ के बाद स्पेस दी जाती है. ठीक है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस 9 million. Next question is 705 million. Sorry, we have a mistake here. 100, you can correct it. D place कर लीजिएगा. ठीक है, 705 million. अगेन हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. ठीक है, अब लिखा हुआ है 705 million. तो मिलियन के कॉलम में हम 705 लिखेंगे. बाकी देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम इन सब की जगह पर 0 प्लेस कर देंगे. नाउ वी कैन राइट 705 million लाइक दिस. ओके, जिस भी कॉलम में हमारे पास वैल्यू ना हो वहाँ पर हम 0 प्लेस कर देते हैं. ओके, रिमेनिंग पार्ट्स आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है. 1,289,056. ये बिल्कुल क्वेश्चन 4 की तरह है. इसमें भी हमने पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया. ठीक है, और उसमें हमने वैल्यूज़ को प्लेस कर दिया. And keep it in your mind, always you have to make a place value chart from the right side. Okay, now you can see 1 is written under the million column, so we can write here 1 million comma. Next देखिए, ये 3 वैल्यूज जो हैं ये सारी थाउजेंड्स की हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? We can read it 289. 289 और ये किस कॉलम में है? 1000 के कॉलम में. राइट, वी कैन राइट here 1000. 289,000. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है डैट इज वंस कॉलम. इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? 56. देखिए 100 के नीचे कोई वैल्यू भी नहीं है ना, 0 है, इसको तो हम नहीं पढ़ते. सो वी कैन जस्ट राइट इट एंड 56. सो आवर आंसर इज 1,289,056. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है. 613,421,005. अगेन हम क्या करेंगे, पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे, उसमें तमाम वैल्यूज़ को लिख लेंगे. अब हम इसको पढ़ते हैं कि मिलियन. देखिए हमारे पास अब मिलियन में 3 वैल्यूज़ हैं. ठीक है, मिलियन के कॉलम में 3 वैल्यूज़ हैं ना, 10 मिलियन की भी है, 100 मिलियन की भी है. तो हम जस्ट सिर्फ मिलियन के कॉलम की वैल्यूज़ को पढ़ेंगे. क्या लिखा हुआ है? 613. सो वी कैन राइट इट 613 मिलियन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 1000 का कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है 421. सो वी कैन राइट इट 421. ये कौन सा कॉलम था? 1000 का. सो वी कैन राइट 1000. लास्ट में देखिए हमारे पास जस्ट यूनिट की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 5 and 5. इसी तरीके से आपने रिमेनिंग 2 पार्ट्स भी सॉल्व करने होंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 10. राइट द नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म. ठीक है, एक्सपैंडेड फॉर्म मैंने आपको कल भी बताया था. एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है कि हर डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम एक्सपैंडेड फॉर्म कहते हैं. हमने तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी होती है. अब आप चाहें तो उसको ऊपर ना अपनी आसानी के लिए इसके भी प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ना बनाएं. फर्स्ट वैल्यू 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन. सो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 मिलियन. ठीक है, नेक्स्ट फिर देखें 2 क्या थी हमारे पास? 200,000. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 0, अगेन 0, अगेन 0 प्लस 1. देखिए किसके नीचे लिखा हुआ है? टेंस की सीध में है ना, सो इट इज़ 10 एंड 7 यूनिट है, तो 7 आ जाएगा. ठीक है, एक तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्लेस वैल्यू चार्ट बना लें और इस तरीके से उनकी जितने भी जो नंबर है ना, इसके हर डिजिट की इंडिविजुअली हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म आ जाएगी. एंड कीप इट इन योर माइंड, जब भी हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं तो हमने साथ प्लस का सिंबल लगाना होता है. ठीक है, देखिए अगर हम इन सारों को दोबारा प्लस करें ना तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी. ठीक, तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है. इसका एक और शॉर्टकट भी ये है कि अगर आप प्लेस वैल्यू नहीं लिखते तो आप क्या करें, फर्स्ट वैल्यू क्या है? 7. तो 7 के बाद काउंट करें कितनी वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमने क्या किया? 6 जीरोस प्लेस कर दिए, तो ये इसकी 7 की प्लेस वैल्यू आ गई. नेक्स्ट है 2. 2 के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 5. तो हमने 5 जीरोस लगा दिए. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि जिसकी भी प्लेस वैल्यू आपने लिखनी है पहले उस डिजिट को लिख लिया और उसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उतने 0 लगा लिए. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है
917,245,985 हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट हम लिखेंगे 9 के बाद देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने क्या किया 9 लिखा और फिर 8 ज़ीरो लगा दिए। नेक्स्ट है 1, हमने 1 लिखा 7 ज़ीरोज़ लगा दिए। नेक्स्ट है 7, हमने 7 लिखा और हमने 6 ज़ीरोज़ लगा दिए। नेक्स्ट है 2, हमने 2 लिखा और 5 ज़ीरोज़ लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, इसको मत लिखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है 4, हमने 4 लिखा, ठीक है, और फिर 4 ज़ीरोज़ लगा दिए। नेक्स्ट है 5 लिखा, 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। 9 है, 2 ज़ीरोज़, 8 के बाद 1 ज़ीरो और 5 इज़ सिंगल डिजिट। ठीक है, इंडिविजुअल इसके बाद कोई वैल्यू नहीं, तो जस्ट हम 5 लिखेंगे। इस तरीके से आपने बाकी क्वेश्चंस की भी एक्सपेंडेड फॉर्म खुद से लिखनी है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सी है। सो क्लास आपका होमवर्क ये है कि पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन 4 हमने किया उसका बी और डी पार्ट, पेज नंबर 7 पे हमने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 किया, इन दोनों के भी बी और डी पार्ट आपने शीट्स पर सॉल्व करने हैं। बहुत नीट काम करना है, मार्जिन लाइन लगानी है, एंडिंग लाइन लगानी है। ठीक है, डेट और डे लिख के बहुत खूबसूरत राइटिंग में आपने काम करना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।